Good morning, everyone. I am Dr. Vikas. Today, we will discuss the chapter from the value added course Chemistry in Everyday Life. And in this chapter, firstly, we start that section 4, and that is the chemotherapy. Or in this chapter, we will start from drugs. So, today, we will firstly discuss about the drugs and their role in medicinal chemistry. So, firstly, we will discuss about drugs and their role in medicinal chemistry. सो अगर हम ड्रग्स की बात करें कि ड्रग्स क्या है, व्हाट इज ड्रग? ओके, जनरली ड्रग्स आर केमिकल सब्सटेंसेस विद लो मोलिकुलर masses and the molecular mass typically ranging from 100 to 500 atomic mass unit. Okay, and these drugs interact specifically with macromolecular targets in the body and leading to a biological response. Okay, and when this biological response is therapeutic and beneficial, that means जो biological response आ रहा है अगर वो beneficial है बॉडी के लिए, तो जो पर्टिकुलर वो जो केमिकल सब्सटेंस होगा उसको हम बोलेंगे ड्रग, कि वो एक एज ए मेडिसिन की तरह हम उसको यूज कर रहे हैं. सो मेडिसिन आर यूज टू ट्रीट डिजीजेस. ओके, and when this biological response is therapeutic and beneficial, we refer to these substances as medicines, and medicines play a crucial role in the diagnosis, क्योर, मिटिगेट मीन्स उसके जो इफेक्ट्स है उसको कम करने के लिए, ट्रीट और प्रिवेंट डिजीजेस. जो मेडिसिन है उसको हम यूज करते हैं किसी भी जो इलनेस है उसको डायग्नोज करने के लिए, उसको क्योर करने के लिए, एंड उसको मिटिगेट करने के लिए मीन्स उसको उसके जो इफेक्ट्स है उसको कम करने के लिए, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीजेस एंड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द डिसीजेस. सो ओके, सो फ्रॉम that point of view, so it is important to understand that most of these drug, if is taken in excess amount, it can act as a poison. If any drug is taken in excess amount, note the amount or doses prescribed by the medicines, prescribed by the some medicinal practitioner or doctors. So when we take the drugs in excess amount, so that particular can act as in a poison. That particular drug can act as a poison. So if we write down drugs in excess amount act as potential poison. And all the drugs and medicines have chemical substances. So जितनी भी हमारे पास ड्रग्स हैं सभी में क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं. ओके, सो द यूज ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस फॉर द थेरेप्यूटिक पर्पज इज नोन एज कीमोथेरेपी. सो द यूज ऑफ केमिकल सब्सटेंस, जो केमिकल सब्सटेंस हम इनटेक कर रहे हैं बॉडी में, अगर उससे कोई थेरेप्यूटिक इफेक्ट या थेरेप्यूटिक बेनिफिशियल हमें हो रहा है, सो द यूज ऑफ chemicals for wait, therapeutic purposes is known as chemotherapy. Okay, so the chemical substance
intake by any person for the therapeutic purpose is known as chemotherapy, and this concept is particularly significant have significant importance in the treatment of various diseases including cancers, microbial infection. So the understanding of right doses and mechanism of action of drug is essential for the safe and effective use in medicines. So if you take any drugs, if you take any drugs and drugs in a right doses, that means the doses or amount prescribed by the medicinal practitioner or doctors, and also if you know the mechanism of action of the drug. So both of these 2 points, right amount of the drug, right doses, कि किस अमाउंट में हमें उसको लेना है, डोजेस और अमाउंट, और एंड mechanism of action of drug is essential for for their safe and effective use in medicines. Okay, so next we discuss, let's move on the topic of classification of drugs. So drugs are classified in four types on the basis of their pharmacological effects, on the basis of their chemical structures, on the basis of the drug actions, or and last one is the on the basis of the molecular target. So firstly we discuss the classification based on the pharmacological effect. Okay, this classification is based on the therapeutic effect of the drug on the body, कि जो ड्रग हम इनटेक कर रहे हैं उसका बॉडी में इफेक्ट क्या है, वो किस तरह से हमें बेनिफिशियल है. इट इज हाईली यूजफुल फॉर डॉक्टर्स बिकॉज as it provide them with a list of drugs available for treatment of a particular condition. फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मीन्स कि कोई भी ड्रग जो हम इनटेक कर रहे हैं उसका बॉडी पे थेरेप्यूटिक इफेक्ट क्या है, और ये डॉक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसे डॉक्टर को पता चल जाता है कि कौन सी ड्रग से हमें क्या इसेंशियल बेनिफिट्स हो रहे हैं या किस ड्रग से हम किस इलनेस को, किस डिसीजेज को क्योर कर सकते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एक्लोफिनैक एंड पैरासीटामोल, जिसको हम पीसीएम बोलते हैं, पैरासीटामोल टेबलेट्स. तो पैरासीटामोल एक्ट एज एन एनाल्जेसिक फॉर पैरासीटामोल को किस लिए यूज करते हैं, पेन रिलीफ के लिए और फीवर में, दोनों में भी इसको यूज करते हैं. पैरासीटामोल को हम जो एक्लोफिनैक है उसको हम यूज करते हैं फॉर पेन रिलीफ एंड दिस इज एन एनाल्जेसिक एंड used for pain relief. While this is an a betadine used as an antiseptic solution. और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन क्या करता है, एंटीसेप्टिक हेल्प्स इन किलिंग, और एंटीसेप्टिक helps in killing or inhibiting the growth of inhibiting the growth of microorganism. Okay, so this is the first classification of drug on the basis of the pharmacological effect. Second classification based on the drug action, कि how that particular drug intake by any person or consumed by any person, how that particular drug and what is the mechanism of action followed by that drug. So this classification is based on how a drug act on a specific biochemical process, how a drug act acts on a specific biochemical process in the body. ओके, सो इसमें हम अगर हम बात करें एंटीहिस्टामाइंस जो ड्रग्स होती हैं, एंटीहिस्टामाइन ड्रग क्या करती है, एंटीहिस्टामाइन ड्रग्स block the action of histamine, and the histamine a compound responsible for causing
inflammation and allergic reaction. एंड एंटीहिस्टामाइन की अगर हम बात करें, इसमें जो ड्रग्स आती है जो हम मोस्टली यूज करते हैं, सिट्राजिन। सिट्राजिन सिट्राजिन इज एन एंटीहिस्टामाइन ड्रग। सिट्राजिन इज एन एंटीहिस्टामाइन ड्रग। सिट्राजिन करती क्या है? सिट्राजिन जहाँ पे हिस्टामाइन पहले अमीनो एसिड के साथ बाइंड होता है, अमीनो एसिड की हिस्टामाइन की जगह सिट्राजिन जाके बाइंड हो जाता है और जो हिस्टामाइन का जो एक्शन है वो ब्लॉक हो जाता है। सो जिससे इन्फ्लेमेशन और जो एलर्जिक रिएक्शन है वो नहीं होती। जैसे अगर हम जब हमें ज़्यादा छींकें आती हैं, एलर्जी हो जाती है नोज़ में, तो तब हम सिट्राजिन लेते हैं। या कई बार हमें जैसे कुछ अ, जैसे जो अ, मधुमक्खी अगर हमें काट लेती है, तब भी हम सिट्राजिन ले लेते हैं, क्योंकि सिट्राजिन लेने से क्या होता है कि जो इन्फ्लेमेशन है, जो उस पर्टिकुलर एरिया पे जहाँ पे उसने बाइट किया है, मधुमक्खी या जो बी हमें बाइट किया है, उससे क्या होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया पे जो इन्फ्लेमेशन है वो नहीं हो पाता, कम होता है। सो सो दिस इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ड्रग एक्शन। जनरली अगर हमें किसी ड्रग का ये पता है कि वो ड्रग किस तरह से, किस बायोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू बॉडी में एक्ट हो रही है, या उसका जो बायोकेमिकल मैकेनिज्म वो एक्शन क्या ड्रग का बॉडी में क्या है, अगर हमें वो पता होता है तो हम उसके बेसिस पे हम जो ड्रग्स है वो डिजाइन कर सकते हैं, उस ड्रग को हम यूज कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर। मीन्स किसी ड्रग का केमिकल स्ट्रक्चर क्या है और उस पे क्या केमिकल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। So next one is the, so this classification is based on the chemical structure. Drugs with similar structural feature often exhibit similar pharmacological activity. That means अगर किसी दो ड्रग्स हैं, ड्रग्स with similar structural features often exhibit similar pharmacological activities. ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम सल्फोनामाइड्स की बात करें, दिस इज एन सल्फोनामाइड मॉलिक्यूल्स। दिस इज एन सल्फोनामाइड मॉलिक्यूल्स। सल्फोनामाइड जो इसका एक कॉमन स्ट्रक्चर है, मैक्सिमम ड्रग में आपको ये मिल जाएगा। जो इसका कॉमन स्ट्रक्चर है ये वाला। ओके, सो विच डिफाइन देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स। सो जिस ड्रग में ये स्ट्रक्चर अवेलेबल है, इसमें जो बेसिक ड्रग आती है एसिटाजोलामाइड, ए सी सॉरी ACETAZOL, एसिटाजोलामाइड। एसिटाजोलामाइड को जनरली जो यूज एस्टाजोलामाइड का यूज कब करते हैं हम, जब हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है, तब एस्टाजोल का, अगर नोजिया हमें हो रहा है, जैसे हम लद्दाख में अगर हम मूव करते हैं, अगर आप हिल एरिया में जा रहे हो और लद्दाख में आप मूव कर रहे हो, तो लद्दाख में क्या है कि जो ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो कम है, जो एयर में जो ऑक्सीजन कंटेंट है वो कम है, तो वहाँ पे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, सर चक्कर, मतलब उसमें हमें क्या होता है कि हेडेक होने लग जाता है, नोजिया की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वहाँ पे एस्ट्राजोलामाइड अगर हम ले लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो हमारी जो ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है वो नॉर्मलाइज हो जाती है। सो बेसिकली क्या है कि जो केमिकल स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर किसी ड्रग में जो केमिकल स्ट्रक्चर सेम है, सो ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर जो उसकी फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो भी सेम होंगी, तो हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वन इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मोलिकुलर टारगेट्स। सो इन दैट अगर हम बात करें, ड्रग इंटरेक्ट विद वेरियस बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। सो दीज आर नोन एज टारगेट मोलिक्यूल्स और ड्रग टारगेट्स। सो मोलिकुलर टारगेट्स, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोलिकुलर टारगेट्स, एंड मोलिकुलर टारगेट्स में क्या क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स,
लिपिड्स में प्रोटीन्स, जो अमीनो एसिड्स है, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स. So drug interact with various biological macromolecules such as carbohydrates, lipids, proteins, nucleic acid, DNA, RNA. So drug that share common structure feature often interact with same targets molecules, producing a similar mechanism of action. So among all classification, जो हमने 4 क्लासिफिकेशन डिस्कस किए हैं, दिस इज द वन मोस्ट यूजफुल फॉर मेडिसिनल केमिस्ट एज इट हेल्प्स इन द डिजाइन एंड डेवलपमेंट्स ऑफ न्यू ड्रग्स. सो अगर हमें ये पता है कि कोई भी जो ड्रग है वो किस तरह से कार्बोहाइड्रेट के साथ बाइंड हो रही है, व्हाट इज द बाइंडिंग एक्शन विद लिपिड्स, व्हाट इज विद प्रोटीन्स, व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए, सो दैट हेल्प्स इन द डिजाइनिंग ऑफ ड्रग ड्रग and that is helpful for the medicinal chemist. So we today discuss 4 types of classification based on drug. First one is the classification based on pharmacological effect, based on pharmacological effect. Second, classification based on drug action. And third one is the classification based on chemical structure. And last one is the classification based on molecular targets. फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट में हम उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी चेक करते हैं, जो डॉक्टर के लिए हेल्पफुल होता है. डॉक्टर्स के लिए हेल्पफुल कैसे होता है कि उसको ये कि कौन सी ड्रग किस तरह के फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो कर रही है. बेस्ड ऑन ड्रग एक्शन, कि उसका मैकेनिज्म ऑफ ड्रग ऑफ एक्शन क्या है, वो किस तरह से जो स्पेसिफिक बायोकेमिकल प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व हो रही है, केमिकल स्ट्रक्चर, अगर किसी ड्रग में सेम केमिकल स्ट्रक्चर है तो उसकी सेम सिमिलर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होंगी, सिमिलर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज शो करेगा. लास्ट वन इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मोलिकुलर टारगेट्स में वो किस तरह से कार्बोहाइड्रेट के साथ बाइंड हो रही है, किस तरह से लिपिड्स के साथ बाइंडिंग हो रही है, और क्या प्रोटीन के साथ है, और क्या न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए के साथ जो मोलिकुल्स जो पर्टिकुलर ड्रग्स है वो किस तरह से वहां पे बाइंड हो रही है. सो by understanding these different classification helps in choosing the right drug for the right purpose and effective and safer treatment. So all of these classification helps in choosing the right drug for the right purpose, ensuring effective and safer treatment. Okay, so in this video lecture हम इतना ही देखते हैं. फर्स्ट वन इज द ड्रग क्या है, और आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द ड्रग्स और मेडिसिन, नेक्स्ट वी डिस्कस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मोलिकुलर टारगेट्स. So thank you so much.